Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with our Indian Economic Development series, we are doing chapter number 5. And in this particular video, we'll do state of human capital formation in India and the need of government intervention in education and health sector. If you haven't heard the previous videos, you must go through them for better understanding of this particular topic. So let's start with the state of human capital formation in India. देखिए भाई, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री. आप फेडरल कंट्री है तो इसका मतलब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड विलेज पंचायत काम करती है. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट मेंशंस कि इन तीनों लेवल पर हमारे यहाँ एजुकेशन और हेल्थ पर काम होना चाहिए. सो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री विद अ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो भाई वो क्या फंक्शंस हैं? एक्सपेंडिचर ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बी कैरिड आउट simultaneously by all three tiers of government. गवर्नमेंट चाहे यूनियन लेवल पर हो, चाहे स्टेट, चाहे लोकल, उन सबको एजुकेशन और हेल्थ पर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर करना है, काम करना है. भाई क्यों करना है? बिकॉज हेल्थ and investment in education are the most important sources of human capital formation. अगर आपने पहली वाली वीडियो सुनी है तो आपको पता होगा कि what are the sources of human capital formation, how human capital formation, economic growth are related. There are so many things. If you will understand, you will understand this lecture really well. अब देखना ये है कि जब इतना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने रोल दिया हुआ है सब गवर्नमेंट्स को, तो भाई गवर्नमेंट उसको किस तरीके से मैनेज करती है. तो नाउ फैसिलिटेटर्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, द मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन and various organizations like National Council of Educational Research and Training, NCRT, University Grant Commission, UGC, and All India Council of Technical Education, AICTE, facilitate institutions which come under the education sector. Facilitator of health sector कौन है भाई? The ministries of health at union and state level, Department of Health and various organizations like National Medical Commission and Indian Council for Medical Research, ICMR, facilitate institutions which come under health sector. तो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्रीज देखती हैं, एनसीईआरटी देखती है, यूजीसी देखती है, एआईसीटीसी देखती है, एआईसीटीई देखती है एजुकेशन सेक्टर को, और आपकी हेल्थ को देखते हैं, मिनिस्ट्रीज देखती हैं, फिर नेशनल मेडिकल कमीशन देखता है, आईसीएमआर देखता है. भाई इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए देखती हैं? बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन are most important to the extent कि अगर इनको ठीक से नहीं मैनेज करा जाए तो ये इरिवर्सिबल डैमेज तक कर देती हैं. देखिए, इंडिया इज अ पुअर कंट्री और हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैनॉट अफोर्ड गुड एजुकेशन, दे कैनॉट अफोर्ड हेल्थ फैसिलिटीज. तो इन सच अ सिचुएशन it becomes all the more important for the government to look after both the sectors, because if we will not pay attention to education and health, if the government will not take appropriate steps, then we will never be able to convert human resource into human capital. And India में massive poverty है. 8.4 करोड़ तो ऑफिशियल फिगर है people below the poverty line. So in a developing country like India, with large section of population living below the poverty line, many people cannot afford to access basic education and healthcare facilities. Moreover,
A substantial section of India's population cannot afford to reach super specialty healthcare and higher education. Both the union and state governments have been stepping up expenditure in the education sector over the years in order to fulfill the objective of attaining cent% literacy and considerably increase the average educational attainment of Indians. जब तक हम अपनी एजुकेशनल और अपने हेल्थ सेक्टर पे ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारा देश डेवलपमेंटल प्रोसेस नहीं उठा पाएगा। अब क्या इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मैनेज करे? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और संग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, information regarding human capital, all these are very important sources of human capital formation. And we know that India is a federal country. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों लेवल पर एजुकेशन और हेल्थ पे काम होता है। प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? बिकॉज हेल्थ और एजुकेशन का प्राइवेट और सोशल दोनों बेनिफिट हैं। अब अगर हेल्थ और एजुकेशन को ढंग से नहीं मैनेज करा जाएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ का बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है किसी भी कंट्री के ह्यूमन कैपिटल पर। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को कभी भी ह्यूमन कैपिटल में बदल ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपका जो पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन की, हेल्थ की, वो गलत हैं, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। क्यों? गलत स्कूल में गलत एजुकेशन से बच्चे का गलत डेवलपमेंट, गलत हॉस्पिटल में गलत ट्रीटमेंट से हो सकता है बंदा आगे हमें कभी मिला ही नहीं। तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक अ सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड। जो इम्पैक्ट हो जाता है हम उसको पलट नहीं सकते। अगर किसी को गलत ट्रीटमेंट मिल गया और उसकी डेथ हो गई तो क्या उसको वापस लाया जा सकता है? इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज असेंशियल। फॉर इंस्टेंस, once a child is admitted to the school or healthcare center where the required services are not provided, before the decision is taken to shift the child to another institution, substantial amount of damage would have been done. ऊपर से हमारी पॉपुलेशन इतनी पुअर है जो कि अफोर्ड ही नहीं कर सकती है अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर। गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल हो जाता है ऐसे सर्कमस्टेंस में। सो मोर ओवर, individual consumer of these services do not have complete information about the quality of the services and their cost. एक इंडिविजुअल पेरेंट को क्या पता कि एजुकेशन का करिकुलम क्या होना चाहिए? एक पेशेंट को क्या पता कि हॉस्पिटल की सर्विसेज में उसको क्या प्रोवाइड होना चाहिए, क्या कॉस्ट होनी चाहिए? In this situation, the provider of education and health service acquire monopoly power and are involved in exploitation. अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इस सिचुएशन में? टू इंश्योर दैट द प्राइवेट प्रोवाइडर ऑफ दीज सर्विसेज adhere to standards stipulated by the government and charge the correct price, और करेक्ट प्राइस के संग संग करेक्ट सर्विस वो दे। 1 रुपए की चीज़ के 1000 रुपए ना ले। जो एजुकेशन, जो हॉस्पिटल में सर्विस मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है देखना कि सही एजुकेशन और सही मेडिसिन, सही मेडिकल ट्रीटमेंट हर जने को मिले। So I hope the lecture is clear to you. Listen to it 4 or 5 times. It's a very important lecture and it will help you get good marks. Happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe the video for future notifications.